ہمیں کسی چیز سے کوئی مطلب ہے ہی نہیں ایسا لگتا ہے، لیکن ہماری قوم کا نوجوان اگر اس سے کہا جائے گانا پڑھو تو فٹافٹ پڑھتا ہوا چلا جائے، اس سے پوچھے میچ کون کھیل رہا ہے تو فٹافٹ نام بتاتا ہوا چلا جائے، اگر اس سے یہ کہا جائے بتاؤ قرآن پڑھ کے سنا دو تب وہ پڑھ کے نہیں سنا سکتا۔ ارے مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا چلنا بولے نبی نبی، جس کا اٹھنا بولے نبی نبی، جس کا کھانا بولے نبی نبی، اگر وہ کھائے تو اس کا کھانا بولے نبی نبی، اگر وہ پیے تو اس کا پینا بولے نبی نبی، اگر وہ سوئے تو اس کا سونا بولے نبی نبی، اگر وہ جاگے تو اس کا جاگنا بولے نبی نبی، اگر وہ تجارت کرے تو تجارت کرنا بولے نبی نبی، یعنی کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ بولے نبی نبی۔ مولانا زین العابدین آپ کہو گے مولانا بدرالدین اگر کسی کا چلنا بولے نبی نبی اٹھنا بولے نبی نبی تو ملے گا کیا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آدمی کا چلنا بولے نبی نبی اٹھنا بولے نبی نبی تو جنت ہے اس کے لیے بنی بنی، جنت ہے اس کے لیے بنی بنی، لیکن گلیوں میں گھومنے سے جنت نہیں ملنے والی، جھوٹ بولنے سے جنت نہیں ملنے والی، چغلیاں کرنے سے جنت نہیں ملنے والی، گھومنے سے جنت نہیں ملنے والی، ہے کہ نہیں؟ چغلیاں فلمیں دیکھنے سے جو ہے جنت نہیں ملنے والی، جنت بہت مشکل ہے، آسان بنا کے رکھ دیا ہے، جنت بہت مشکل ہے۔ جنت اگر لینا ہے تو نمازوں کو پڑھنا پڑے گا، جنت اگر لینا ہے تو سچائی کا دامن تھامنا پڑے گا، جنت اگر لینا ہے تو جو ہے سچ بولنا پڑے گا، جنت اگر لینا ہے تو سجدے کرنا پڑیں گے، جنت میں اگر جانا ہے تو ماں باپ کا ادب کرنا پڑے گا، جنت میں اگر جانا ہے تو ماں باپ کے قدم کو چومنا پڑے گا، جنت میں اگر جانا ہے تو حج اگر فرض ہو گیا ہے تو وہ کرنا پڑے گا، جنت میں اگر جانا ہے تو بڑوں کے جو ہے ادب کرنا پڑے گا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا پڑے گی، جنت میں اگر جانا ہے تو اچھے کام کرنا پڑیں گے تب ملے گی جنت۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے کام تو پڑے ہیں میرے بھائی، جب قبر میں آپ کو اتارا جائے گا گاؤں کو لوگ لے کر آپ کو جائیں گے، آپ کس بھول میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، قبر میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، سانپ کاٹے گا کیا دیکھا جائے گا، بچھو ہمیں ڈھسے گا کیا دیکھا جائے گا، ہماری قبروں میں ہم پہ عذاب ہوں گے کیا دیکھا جائے گا، ہم آگ میں جلیں گے کیا دیکھا جائے گا، نہیں، ہمارا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھا جائے گا، بلکہ مصطفیٰ کا ماننے والا، مصطفیٰ کا چاہنے والا، غوث اعظم کا دیوانہ، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا اپنے سر کو سجدے میں رکھے گا اور اپنے قلوب کو عشق رسول کا مدینہ بنائے گا، اور بنانے کے بعد میں اپنی زندگی میں یہ اعلان کرتا ہوا جائے گا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج منا لے ان کو، بعد مرنے کے منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آج منا ان کو اگر منانا ہے تو۔ آج تو کہتا ہے نبی جو ہے وہ کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں، آج تو کہتا ہے محمد جو ہے وہ پیٹھ کے پیچھے کا نہیں جانتے، آج تو کہتا ہے محمد جو ہے وہ کچھ نہیں جانتے۔ معاذ اللہ، کل جب قبر میں ہوگا اور قبر میں جب فرشتے آئیں گے اور آنے کے بعد میں تجھ سے سوال کریں گے من ربوں کا، بول تیرا رب کون ہے، تو کیا جواب دے گا؟ میرا رب اللہ ہے۔ لیکن فرشتوں نے ابھی تجھے چھوٹ نہیں دی ہے، پہلا سوال ہو گیا، دوسرا سوال انہوں نے فٹاک سے رکھا، بول ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ اب آپ نے کہہ دیا میرا دین دین الاسلام ہے، تو فرشتوں کو چاہیے تھا جنت کا پروانہ آپ کو سنا دیتے اور سنانے کے بعد میں واپس چلے جاتے، لیکن نہیں، کامیابی کا دار و مدار جو ہے پہلے سوال پہ نہیں رکھا گیا، دوسرے سوال پہ نہیں رکھا گیا، بلکہ کامیابی کا دار و مدار تیسرے سوال پہ رکھا گیا۔ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، بول ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ یعنی روئے زمین پہ جب تو چلتا تھا، روئے زمین پہ جب تو اٹھتا تھا، روئے زمین پہ جب تو کھاتا تھا تو کھاتے کھاتے میرے نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ چلتے چلتے میرے نبی کو کیسا مانتا تھا؟ اب جو نبی کو آج ہی نہیں مانتا ہے کل کیا جواب دے گا؟ یہی تو کہے گا نا کہ یہ تو محمد ہے، یہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، لیکن لعنت ہو ان پر جن کا یہ عقیدہ ہے، وہ کیا جواب دیں گے؟ ہم تو مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں، جب فرشتہ ہم سے قبر کے اندر ہماری سوال کرے گا بول ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تب ہم اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں گے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی بنا، مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا پھر نہ
क्या मानेंगे कियामत में अगर मान गया। आज लो उनकी पनाह, आज पकड़ो उनका दामन। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह की जन्नत, रसूलुल्लाह की कब्र में जाना ही जाना है, कब्र में पहुंचना ही पहुंचना है। सवाल कर लीजिए और उसको आसान कर लीजिए, अपना काम पूरा कीजिए, उसका अमल अल्लाह आपको पूरा अता फरमाएगा। मैं मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। बात यह है कि अगर आज हम मकान बनाए और मकान बनाने के बाद में करोड़ों रुपया उसमें लगा दे, हर चीज हमने उसमें नस्ब की, अच्छी दीवारों को सजाया है, उसमें जो जो चीजें लगाना थी जिंदगी बसर करने के लिए, हमने उसमें फ्रिज भी लगाया, उसमें गाड़ियां भी खड़ी की, उसका डेकोरेशन अच्छा किया, करोड़ों रुपया लगाया, लेकिन करोड़ों रुपया लगाने के बाद में सिर्फ एक बल्ब नहीं लगाया, उसके घर के अंदर अंधेरा है। आप गए हैं घर के अंदर, अपने बच्चे को लिया, बेटा चलो घर में दाखिल हो जाइए। बच्चे ने घर के अंदर कदम रखा ही था कि वापस हो गया, बाप ने कदम रखा ही था कि घर से बाहर निकल आया, बीबी ने कदम रखा घर के अंदर, उससे पहले ही वो बाहर निकल के चला आया। आखिर वजह क्या है, घर के अंदर जाते क्यों नहीं? इन्होंने सवाल किया, बताइए घर के अंदर क्यों दाखिल नहीं होते? बच्चा चीख कर बोल उठा, बाबा आपने करोड़ों रुपए तो इस मकान में लगा दिए, लेकिन एक बल्ब आप ना लगा सके। अगर बल्ब नहीं लगाएंगे तो घर के अंदर तारीकी है, अंधेरा है, जो दहशत है, बहुत गंभीर मामला है। अंधेरे में हमारा जी घबराता है, हम जा नहीं सकते। अंधेरे में हमें डर लगता है, हम जा नहीं सकते। हमें जो है दहशत से डर लगता है, हम जा नहीं सकते। अब बाप की समझ में आया, वो उठा है, मार्केट गया है, एक बल्ब लिया है, बल्ब लेने के बाद अपने मकान में लगाया। लगाना ही था कि मकान के अंदर नूर पैदा हो गया, जिया पैदा हो गई, रोशनाई आई। अब उसी घर के अंदर, जिस घर के अंदर बल्ब लगने से पहले बेटा घर के अंदर जाने को तैयार ना था, बीबी घर के अंदर जाने को तैयार ना थे, बच्चे घर के अंदर जाने को तैयार ना थे, बाप और माँ जो है घर के अंदर जाने को तैयार ना थे, अब कोई जाने को उस घर के अंदर तैयार ना था। बल्ब लग गया, अब घर के अंदर बाप भी जा रहा है, माँ भी जा रही है, बेटा भी जा रहा है, बेटी भी जा रही है। घर के बेधड़क घर के अंदर दाखिल होते हुए चले जा रहे हैं। मैंने सवाल किया, पहले भी तो घर यही था, इसमें जाना क्यों नहीं चाहते थे? कहा हजरत उस घर के अंदर अंधेरा था, डर लगता था, हमारा दिल नहीं चाहता था कि हम घर के अंदर जाएं। लेकिन आओ मुस्तफा की बारगाह में, आका से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह कब्र का क्या हाल है? मुस्तफा ने फरमाया, कब्र गहरे घरों में से एक गड़ा है, कब्र अंधेरे घरों में से एक अंधेरा घर है। या रसूल अल्लाह हमारा हाल ये है कि अगर हम मकान बनाए उसमें बल्ब न लगाए तो आका हमारा दिल नहीं लगता, हम घर के अंदर ठहरते नहीं डर की वजह से। या रसूल अल्लाह आप कहते हैं कि कब्र अंधेरा है, अंधेरा घर है, या रसूल अल्लाह उजाले का साधन क्या है? बताइए ना आका, उजाला होगा कैसे? हमारी कब्र के अंदर नूर आएगा कैसे? हमारी कब्र के अंदर जिया आएगी कैसे? हमारे कब्र के अंदर रोशनाई आएगी कैसे? हमारी कब्र के अंदर से अंधेरा हटेगा कैसे? हमारी कब्र के अंदर से डर हटेगा कैसे? हमारी कब्र के अंदर से खौफ हटेगा कैसे? जमाना खामोश है कि जवाब दिया क्या जाए। लेकिन गुंबद खजरा की जानिब जब लो लगा के आका की बारगाह में सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह हमारी कब्र में उजाला होगा कैसे? तो गुंबद खजरा की जानिब से उम्मत मुस्लिमा को जवाब मिलता हुआ नजर आया, अगर तू ये चाहता है तेरी कब्र के अंदर नूर पैदा हो जाए, आका कहते हैं नमाजें पढ़ना ज्यादा से ज्यादा शुरू कर दे। ये नमाजें कर कब्र के अंदर, तेरी कब्र के अंदर उजाले का सामान बनती हुई नजर आएंगी, उजाले का काम करते हुए नजर आएंगे। नमाज पढ़ेंगे तो कब्र के अंदर उजाला होगा, नमाज पढ़ेंगे तो कब्र के अंदर रोशनी होगी। अब सवाल ये है कि हमारे वालिद का इंतकाल हो गया, हमें कुछ आता नहीं, हम वालिद साहब की कब्र पे गए, अपने हाथों को मला और मल के चले आए, कुछ पढ़ा नहीं तो सवाब मिलेगा नहीं। मान लीजिए एक आदमी सुबह 7 बजे घर से निकला, शाम 7 बजे वो काम करके वापस लौटा, अगर उसने काम किया है तब उसका मालिक उसको पैसा देता है, और अगर उसने काम नहीं किया, खाली छुट्टी करके आ गया, तो मालिक जो है उसको पैसा नहीं देता। सीधा सा सवाल ये है कि अगर आदमी काम करेगा तब उसको पैसा दिया जाता है, अगर वो काम ना करे तब उसको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता है। ठीक इसी तरह हमारे वालिद का इंतकाल हो गया, हम अपने वालिद की कब्र पे गए, पढ़ना कुछ जानते नहीं, अलहम्दु के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक हमारे कुछ याद नहीं है। जब हमारे याद नहीं है तो हम अपने बाप की कब्र पे जाके पढ़ेंगे क्या? जब
पढ़ेंगे नहीं तो सवाब मिलेगा क्या? अम्मा की कब्र पे गए और जाने के बाद में कुछ पढ़ा नहीं, खाली हाथ मल के चले आए तो सवाब मिलेगा क्या? कोई सवाब नहीं। जब तक पढ़ोगे नहीं कोई सवाब नहीं मिलेगा। बाप की कब्र पे जाओगे, पढ़ोगे तब उन्हें सवाब मिलेगा। सरकार फरमाते हैं हमारा बाप जो हमारी कब्र के हमारा बाप जो कब्र के अंदर मौजूद है वो किसी की चीज का मोहताज नहीं रहता। न तेरी बिल्डिंग का वो मोहताज है, न तेरी बैंक और बैलेंस का मोहताज है कि मेरा बेटा मेरी कब्र पर आए और आने के बाद में मुझे 1 लाख रुपया दे जाए। नहीं नहीं, वो इसका इंतजार नहीं करता है कि मुझे दौलत कोई दे, वो इसका इंतजार नहीं करता है कि मुझे शरबत कोई दे, वो इसका इंतजार नहीं करता है कि मेरे लिए कोई गाड़ी या बैंक बैलेंस लेकर आए। आखिर वो इंतजार कब्र के अंदर मुर्दा करता किस चीज का है? सरकार कहते हैं यंतज़िरु इला ताबा, अगर कब्र के अंदर वाला मुर्दा अगर किसी चीज का इंतजार करता है, यंतज़िरु इला ताबा, वो इसका इंतजार करता है कि मेरा बेटा मेरी कब्र पर आए, मेरे लिए सारे सवाब करके चला जाए। लेकिन बेटे को कुछ पता ही नहीं है, बेटे को कुछ आता ही नहीं है, बेटे ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। बाप की कब्र पे जाएगा तो पढ़ेगा क्या? एक चीज बता देते हैं, अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब तफसीर रूहुल बयान के अंदर एक वाकया नकल फरमाते हैं कि एक औरत का एक जवान बेटा फौत हुआ, उसको गांव वालों ने दफनाया और कफनाने के बाद में दफना दिया। दफनाने के बाद कुछ अरसे के बाद में उसकी माँ ने अपने बेटे को ख्वाब में देखा और देखने के बाद में फरमाया, बेटे तेरा माँ फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह ने तेरे साथ में क्या मुआमला फरमाया? बेटे ने जवाब दिया, माँ अल्लाह ने मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी। माँ ताज्जुब से बोली, बेटे मैं तुझसे कहा करती थी नमाज पढ़, तू नमाजें ना पढ़ता था। मैं तुझसे कहा करती थी रोजे रखा कर, लेकिन तू रोजे ना रखा करता था। मैं तुझसे कहा करती थी कि कुरान की तिलावत कर, लेकिन तू तिलावत ना किया करता था। मैं तुझसे कहा करती थी तस्बीह व तहलील बयान किया कर, लेकिन तू किया ना करता था। मैं तुझसे कहती थी कि दुरूद मुस्तफा पढ़ा कर, लेकिन तू पढ़ा ना करता था। आखिर तेरा कौन सा अमल अल्लाह को पसंद आ गया कि अल्लाह ने तेरी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी? ख्वाब के अंदर बेटे ने जवाब दिया था, माँ मेरा कोई अमल ऐसा ना था कि अल्लाह मुझे बख्श देता। फिर माँ ने कहा फिर हुआ क्या? तो बेटे ने कहा था, मर्रा रजुलुन अलल मक़बरा, एक आदमी हमारी कब्रिस्तान के करीब से गुजरा, फसल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो एक मरतबा नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा। कहते हैं वहदा सवाब अनिल अमवात, और उस दुरूद पाक का सवाब हम कब्रिस्तान वाले मुर्दों के हवाले कर गया। अल्लाह ने उस दुरूद के सदके में हम तमाम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी है। मामला ये है, समझ रहे हैं? आज तो मेरा भाई फूले नहीं समाना, फूले। हाँ, अल्लाह ने अगर बुलेट दे दिए तो समझ रहे अकड़ के चला रहे, अकड़ के ऐसा लग रहा है पीठ में रात पड़ हुई है। मकान अगर अच्छा मिल गया तो कतई फूले नहीं समाना। अरे साहब हम तो कहते हैं यहाँ पे कुर्ते से बाहर हैं, साइड से बाहर निकले जा रहे हैं कि अरे हमारे पास तो साहब हमारे मकान में टाटा का पैप लगा हुआ है, हमारे चप्पल, हमारे जो पैर में चप्पल है वो बाटा की चप्पल है, घड़ी हम रागो घड़ी पहनते हैं, हमारा कपड़ा कॉटन का होता है। जब हम कार में से निकलते हैं तो पीछे से वो जब सुकड़ता है ना तब लोग कहते हैं हाँ साहब ये निकल के आए। हमारी बैंक बैलेंस जो है बड़ा हाई है, फटे फिर रहे हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है। आप क्या समझते हैं कि जिसके घर में टाटा का पैप लगा होगा वही इज्जतदार है क्या? जिसके पैर में बाटा की चप्पल होगी वो इज्जतदार होता है क्या? जिसके घर में बुलेट हो वो इज्जतदार है? आखिर इज्जतदार है कौन? क्या अच्छे मकानों में रहने वाला इज्जतदार है क्या? बेहतरीन गाड़ियों में सफर करने वाला इज्जतदार है क्या? मसनद पे बैठने वाला इज्जतदार है क्या? बुलेट पर घूमने वाला इज्जतदार है क्या? बोलेरो में घूमने वाला इज्जतदार है क्या? अच्छी बैंक बैलेंस रखने वाला इज्जतदार है? नहीं नहीं, इज्जतदार है कौन? ना तुम्हारे बैंक बैलेंस वाला इज्जतदार है, ना तुम्हारे पैसे वाला इज्जतदार है। मौलाना फिर इज्जतदार है कौन? तो आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में चलते हैं, उनसे पूछते हैं हुजूर क्या बैंक बैलेंस वाला इज्जतदार है? फरमाया नहीं। क्या कोई अच्छी गाड़ी वाला जो है या अच्छी गाड़ी वाला जो है इज्जतदार है? फरमाया नहीं। कहा क्या अच्छी जो है अच्छी पोजीशन वाला जो है इज्जतदार है? फरमाया नहीं। कहा हुजूर फिर इज्जतदार है कौन? तो मुफ्ती आजम हिंद ने इरशाद फरमाया अगर
अगर इज्जतदार देखना है तो उसको देखा करो जिसके घर में 10 दिन के फाके हुए हो, जिसका लिबादा फटा हुआ हो, जो कई दिन का भूखा हो, लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ हो और जब उसका जनाजा लेकर बस्ती वाले लेके जा रहे हो तो देखने वाला कह दे ये कोई दुनियादार नहीं जा रहा है बल्कि आमना के दाल का दीवाना जा रहा है। वो है इज्जत। आज तुम्हें फटे पड़ रहे हैं, ना नमाज से लेना ना कुरान पढ़ना, लेकिन फटे फटे पड़ रहे साहब। हमसे तो अच्छा कोई है नहीं मेरे भाई। अल्लाह की नजर में अच्छा वो है, नबी के सामने अच्छा वो है जो अच्छे अमल करता है। दौलत वाला अच्छा नहीं है, उसने अखलाक वाला अच्छा है। पैसे वाला अच्छा नहीं है, अच्छी आदत वाला अच्छा है। नमाज पंजगाना पढ़ने वाला अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अच्छे हो जाए तो नमाजें पढ़ना शुरू कीजिए, नमाजें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना शुरू कीजिए। समझ रहे हैं, नमाजें पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर करम फरमाएगा। आज हमारी कौम जो है जगह जगह लुटती चली जा रही है, पिटती चली जा रही है। वजह क्या है? वजह यही है कि हमने रास्त को छोड़ दिया है, इसलिए हम जगह जगह पिट रहे हैं, जगह जगह मारे जा रहे हैं, हमारे कुरानों से आयतें निकाली जा रही हैं। आखिर वजह क्या है? तो कुरान सुन लीजिए, अल्लाह कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत करो, परेशान मत हो, कामयाब तुम ही रहोगे। शर्त ये है पहले मोमिने कामिल हो जाओ, मोमिने कामिल हो जाओ। अब मोमिने कामिल किसको कहते हैं? क्या झूठ बोलने वाला मोमिने कामिल होता है? क्या शराबे पीने वाला माअज़ल्लाह मोमिने कामिल होता है? क्या चुगलियां करने वाला मोमिने कामिल होता है? क्या जो है बुराइयां करने वाला मोमिने कामिल होता है? क्या लोगों का पैसा खाने वाला मोमिने कामिल होता है? नहीं नहीं, मोमिने कामिल वो होता है जो नमाज़ें पढ़ने वाला होता है, सच्चाई का दामन थामने वाला होता है। आज दुनिया है इसका नाम। दुनिया जो है वो दुनिया से जाने वाला जब जाएगा तब पता लगेगा। दुनिया में जैसा घूमते हो वैसा कर लीजिए, जैसा आपका दिल लगे वैसा कीजिए, जैसा करना चाहते हैं वैसा आप करते हैं ना। लेकिन जब कब्र में पहुंचेंगे तो पता लगेगा ये जो मौत है वो मोमिन के लिए तोहफा है। आप कहेंगे मौलाना तोहफा कैसे हो गया? मौत है, सबकी तो हवा खराब है कि हमें मौत ना आए। आप कहते हैं कि तोहफा है, ये तोहफा कैसे हो गया? हमने कहा सुन, अगर जीते जी किसी ने मुस्तफा के अपने आंखों अपने ख्वाब के अंदर नबी का चेहरा ना देखा हो, बाद मरने के हर मोमिन की कब्र में सरकार तशरीफ लाते हैं। मरने के बाद में हमें ये तोहफा मिलता है कि हम अपने नबी के चेहरे की ज़ियारत कर लें।